Good morning, class 1. Welcome back to your English class. Children, how are you all? I really hope you all are fine, safe, and also study well in your home. So, children, today we will recap from chapter 1 to chapter 4. It means all 4 chapters till now we learn in our class. Okay? हम आज चिल्ड्रन रिकैप करेंगे. हमने जितने भी 4 चैप्टर्स पढ़े हैं अभी तक, हम सबका आज एक रिकैप लेंगे. ओके, सो चिल्ड्रन, आवर टुडेज एम इज we will recap chapter 1 to chapter 4. It means the chapter names are The Star. Second chapter is Mole and Rat Find a Home. And the third chapter, it means it's a poem, Two Children. And the last 4 chapter, The Crocodile is Happy Again. I really hope, children, you all remember the stories of these chapters and also complete your homework, your book exercise, and I really hope this recap helps you to recall all the 4 chapters, children. Okay? So, please, before we start our class, please make sure you have all the essential items with you. Yes, it means your English book. You can also take your notebook and your pencil case. Okay, children? So, I really hope you all have these items with you. Okay, so now we are going to recap from chapter 1. Okay, and the name is The Star. Children, it's a poem about stars. Okay, and the poet of this poem is Jane Taylor. Okay, you all remember the name of poet? Very good. So, first we will recap our keywords, key points that will help us to recall the chapters easily. Okay. So, the first keywords are word meaning is twinkle, shine with sparkling light, wonder, to be surprised, diamond, precious gem, blazing, it means very hot. Now, traveler, a person who is going from one place to another is called traveler. Spark, a smash flash of light. Curtain, a piece of cloth that covers windows and doors. I know you all know about curtains. Very good. Peep, look at something for a short time. Okay, I really hope you all recall the keywords. Okay, so now, children, in the poem The Star, we learn about stars and their importance in our life. Okay, children, so the little star is twinkling all the night. जो लिटिल स्टार होते हैं वो पूरी रात ट्विंकलिंग करते रहते हैं. When the blazing sun is gone from the sky. कब? जब blazing sun, जब hot sun sky से चला जाता है. Okay, children? Children, this is not your poem. This is the summary of poem. Okay. ये आपके पोएम की समरी है. इट मीन्स इन शॉर्ट में आपके पोएम में आपने जितना भी कुछ पढ़ा, जितना भी कुछ सीखा है, उसका एक छोटा सा समरी है जिससे आप पूरी पोएम एक बार में रिकॉल कर लेंगे. ओके. द ट्रेवलर थैंक्स लिटिल स्टार फॉर हिज टिनी स्पार्क
when he could not see which way to go. जब रात में ट्रैवलर को ये नहीं पता चलता है कि उसे किस रास्ते में जाना है, तब ट्रैवलर किसको थैंक्स बोलता है? स्टार्स को थैंक्स बोलता है फॉर हिज टिनी स्पार्क, उनकी लाइट के लिए. As stars bright and tiny spark light the traveler in the dark. जैसे कि स्टार ब्राइट और टिनी स्पार्क करता है, लाइट देता है, विच लाइट द ट्रेवलर इन द डार्क, जो ट्रैवलर को अंधेरे में, डार्क में रोशनी देता है. ओके, आई होप यू ऑल रिकॉल द चैप्टर्स. ओके, now we have our chapter 2, Mole and Rat Find a Home, and the author of the story is Kenneth Graham. Children, it's a very interesting story. This is a story of two friends. One is Rat and second is Mole. Okay, so first we will discuss keywords. Mole, a mammal that live underground. Okay, mole is an animal or a mammal जो कहाँ पे रहते हैं? अंडरग्राउंड में रहते हैं. रिवर बैंक, साइड ऑफ अ रिवर. चीयर अप, encourage. मिस, टू फील सैड while remembering something. जब हमें कोई चीज़ याद आती है तो हम उसको मिस करते हैं. डिच, a long narrow furrow dug in the ground. ग्राउंड में जो गड्ढा होता है उसे हम डिच बोलते हैं. bushes, woody plants that grows close to the ground. woody plants, children, बहुत सी फील्ड ऐसी होती हैं जहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं. woody plants उन्हें हम कहते हैं, उसे हम bushes भी कहते हैं. इट मीन्स झाड़ियाँ. field, an open expanse of land. disappear, to move out of sight. किसी की आंखों के सामने से गायब हो जाना या दिखाई न देना, उसे डिसअपेयर बोलते हैं. कपबोर्ड, a piece of furniture that used to store things and food. Okay, it means almari or almera. Sardine, a type of fish. Cracker, a thin crisp biscuit. साइडर, जूस ऑफ एप्पल. साइडर क्या है? एप्पल जूस है. स्क्वील, अ लाउड क्राई. एंड नाउ वी विल रीड समरी ऑफ द स्टोरी. सो चिल्ड्रन, इन द स्टोरी मोल एंड रैट फाइंड अ होम, we learn about rat, mole and how they found mole's home. हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने रैट के बारे में पढ़ा, मोल के बारे में पढ़ा, और उन्होंने मोल का घर कैसे ढूंढा, हमने उसके बारे में भी पढ़ा. ओके, सो मोल स्टार्टेड टू लिव ऑन द रिवर बैंक विद हिज फ्रेंड रैट. वन डे मोल वॉज मिसिंग हिज होम. Rat cheer up Mole and they decided to find Mole's home. जब मोल अपना घर को याद कर रहा था तो वो बहुत सैड हो गया था, तो रैट ने उसे चीयर अप किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो मोल का घर ढूंढने जाएंगे. Then across the days, through the bushes and over a field, they searched for Mole's home. उन्होंने डिच को क्रॉस करके, थ्रो द बुसेस के आसपास जाके, ओवर अ फील्ड में जाके किसका घर ढूंढा? मोल का घर ढूंढा. सडनली मोल डिसअपेयर्ड इनटू अ होल थ्रू द टनल. इट वाज मोल्स होम. अचानक से मोल एक टनल के पास होल था, वहाँ पे जाके गायब हो गया. गायब मतलब रैट को नहीं दिखाई दिया. इट वॉज मोल्स होम, क्योंकि ये होल क्या था? मोल का घर था. इनसाइड द हाउस इट वॉज वेरी डार्क, कोल्ड एंड डस्टी. घर के अंदर में कैसा था? बहुत अंधेरा था, कोल्ड था और बहुत धूल थी, डस्ट था. मोल क्लीन द डस्ट एंड रैट लाइटेड द फायर.
मोल ने घर की डस्ट क्लीन की और रैट ने फायर मतलब रोशनी की। Soon the house was bright, clean and tidy. और तुरंत ही घर कैसा हो गया? ब्राइट हो गया, रोशनी हो गई, साफ हो गया, टिडी चमकने लगा, अच्छा दिखने लगा। ओके, देन दे सर्च फूड फॉर डिनर। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने डिनर के लिए फूड ढूंढना स्टार्ट किया। चिल्ड्रन, व्हाट इज डिनर? यस, मील ऑफ नाइट। दे फाउंड कप बोर्ड। तो उन्हें क्या मिला? उनको एक कप बोर्ड मिली। इन कप बोर्ड दे फाउंड सर्डिन्स, क्रैकर एंड 4 बॉटल्स ऑफ सीडर। उन्होंने कप बोर्ड में सार्डिन्स मिली। सार्डिन्स मीन्स अ टाइप ऑफ फिश, क्रैकर, क्रिस्पी बिस्किट मिले एंड 4 बॉटल्स ऑफ साइडर, इट मीन्स 4 बॉटल्स एप्पल जूस भी मिला उन्हें। Okay children, I really hope this will help you. And after this, इसके बाद क्या हुआ था? Yes, they go for their teeny warm beds. Okay. Now children, we will discuss chapter 3. 2 children. And the author of it's a poem, children. 2 children is a poem. And the author of the poem is Spike Milligan. It means poet. So first keyword is hive. A house made by bees. Dozen. It means 12. Number of 12. Okay, जब भी कोई चीज़ 12 होती है तो हम उसे डजन बोल सकते हैं. Buzzed. Sound made by bees. Silly. It means foolish. So these are very small and wonderful insect. Now we will talk about what is bee. Okay, so these are very small and wonderful insects. The color of its body is yellow and black. Bees give us honey. Bees हमें क्या देती है? Honey देती है. And the home of a bee colony is called hive. Yes, it's a hive. There are 2 types of a bee in a group. First is the queen and the rest of the workers. And bees have 5 eyes. So children, in the poem 2 Children, we learn about bees and their importance. Okay? हमने bees के बारे में पढ़ा और उनकी importance भी हमने पढ़ी. There was 2 children, one 4 and one 5. Now we will talk about poem. Okay. So children, in the poem there are 2 children. First is one 4 and second is one 5. एक की एज 5 years थी, एक की एज 4 years थी. Okay. Once they saw a dozen bees within the hive. एक बार उन्होंने 1 dozen bees को हाइव के अंदर देखा. They buzzed about. और वो कैसी आवाज़ निकाल रही थी? बज़ करके आवाज़ निकाल रही थी. Said for those bees are silly things. जो 4 years का चिल्ड्रन था उसने बोला those bees are silly things. ये bees कैसी हैं? Silly things हैं. Silly means foolish things हैं. But how I wish I had their wings. लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि काश मेरे पास भी इनके जैसे wings होते. Okay? I really hope you all enjoy the class. Okay, thank you. So now our last chapter, it means chapter 4. And the name of chapter is The Crocodile is Happy Again. Author Hugh Lofting. Okay children, please remember the name of author also. So children, first we will discuss keywords. Hurt.
टू बी इन पेन, जब भी कोई पेन में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हर्ट बोलते हैं. पे टू विजिट, मीट समवन, जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम उससे क्या बोलते हैं, पे टू विजिट, पे हिम विजिट. ओके. नोटेड. क्विक अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द हेड, जब हम सिर को ऊपर नीचे करते हैं, हाँ बोलते हैं, तो उसके लिए हम नोटेड करते हैं. ओके. डिके, टू गेट स्पॉइल्ड, जब कोई चीज़ बेकार होती है उसे हम डिके बोलते हैं. रिंग मास्टर, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द परफॉर्मेंस इन सर्कस, सर्कस में जो हेड होता है, जो सारी परफॉर्मेंस को इंचार्ज करता है, उसे हम रिंग मास्टर बोलते हैं. अपसेट, अनहैप्पी. क्वैक्ड, साउंड मेड बाय अ डक. चीयर अप, टू मेक समवन हैप्पी. ओके. Now we will read the summary of the story. Okay. So once the circus had come Puddleby. पुडलबी क्या है, पुडलबी इज अ टाउन, पुडलबी एक टाउन है. Everyone was enjoying the show but the crocodile was in pain. सब लोग इंजॉय कर रहे थे शो को, लेकिन क्रोकोडाइल क्या था, अनहैप्पी था, वो पेन में था. He had heard about डॉक्टर डोलेटिल, उसने डॉक्टर डोलेटिल के बारे में सुना था. किससे, with the other animals. The crocodile decided to pay him a visit. क्रोकोडाइल ने सोचा मुझे उनसे एक बार मिलना चाहिए. डॉक्टर डोलेटिल said he had a bad tooth. डॉक्टर डोलेटिल ने कहा, क्रोकोडाइल यू हैव अ बैड टूथ, तुम्हारे पास एक बैड टूथ मीन्स क्या होता है, यस, बेकार दांत जो होता है, जो सड़े दांत, डिकेड टूथ होते हैं, उन्हें हम बैड टूथ बोलते हैं. द स्वीट हैड गिवन दिस टूथ डिके, और आपके दांतों को किसने खराब किया है, यस, स्वीट्स ने खराब किया है. ओके. डॉक्टर डोलेटिल रिमूव द डर्ट एंड पुट सम फिलिंग इन द बैड टूथ. डॉक्टर डोलेटिल ने क्रोकोडाइल के टूथ से डर्ट निकाली और उसमें फीलिंग्स की. ओके. अर्ली दैट इवनिंग द रिंग मास्टर केम टू टेक द क्रोकोडाइल बैक टू द सर्कस, और उसी शाम को रिंग मास्टर क्रोकोडाइल को वापस लेने आया. बट द क्रोकोडाइल डिडंट वॉन्ट टू लीव डॉक्टर डोलेटिल्स हाउस एंड ही स्टेड बैक, बट स्टिल ही वॉज वेरी अपसेट. और क्रोकोडाइल वापस नहीं जाना चाहता था, तो इसलिए वो डॉक्टर डोलेटिल के घर में ही रह गया. लेकिन अब भी वो बहुत अपसेट था, बहुत अनहैप्पी था. सो ही वॉन्टेड टू गो बैक होम टू अफ्रीका. क्रोकोडाइल अपने घर अफ्रीका वापस जाना चाहता था. डॉक्टर डोलेटिल एंड एनिमल डिसाइडेड टू टेक द क्रोकोडाइल वेयर ही वांटेड टू बी. डॉक्टर डोलेटिल ने और जो जितने भी एनिमल्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्रोकोडाइल को वहाँ लेके जाएंगे जहाँ वो जाना चाहता है. इट मीन्स हिज होम अफ्रीका. एनिमल्स पैक्ड देयर बैग्स. द मंकी पैक्ड बनानास. एनिमल्स ने अपने बैग पैक किए और मंकी ने अपना, यस, बनानास पैक किए. द डॉग पैक्ड बोन्स. डॉग ने बोन्स पैक की. द डक पैक्ड वाटर एंड द पैरट पैक्ड बर्ड सीड. ओके. एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स, हु पैक्ड रेस्ट ऑफ थिंग्स, यस, मिस्टर डोलेटिल, मीन्स डॉक्टर डोलेटिल. The crocodile was very happy. Okay, children? So I really hope you all are also very happy to watch this video, and I really hope this will help you to recall all the 4 chapters. Yes, children, this is a very interesting recap. I hope so. So, children, I really hope you all enjoy this class. Okay, thank you so much
for listening me and watching the video. Have a good day.